Now, see, in the last lecture, we have done with the we started with the electrochemical series. What is electrochemical series? The series in which the electrode and their half reactions are arranged according to their decreasing standard potential. मतलब अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड और उनके हाफ रिएक्शंस अगर डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल के ऑर्डर में अगर अरेंज कर दिए, then this complete series is called as what? Electrochemical series, or it is called as electromotive series. Then we have seen the key point. What is the key point of this series? Whenever we write the half reaction is written as reduction. Always. Every time whenever we write the half reaction is written as reduction. Second, the oxidizing agent and the electron are on the left hand side. मतलब लेफ्ट साइड में जो स्पीसीज रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड राइट साइड में जो रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट. तो लेफ्ट साइड का स्पीसीज इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and the right side is the reducing agent. Okay, next point. The next point we said below hydrogen, all elements have the negative standard potential, and above hydrogen, all elements have the positive standard potential. Correct? Then whatever E0 value, मतलब हमें अगर जो भी E0 value दिया रहेगा वो E0 value किसके लिए applicable होगा? Only for the forward direction, for the reaction to occur. Next, अगर हमारा E0 value higher रहेगा, higher मतलब positive रहेगा, अगर हमारा E0 value higher और positive रहेगा, उसका मतलब क्या हुआ? Substance has a more tendency to go in the reaction, has a more tendency to go in the direction, forward direction. Forward direction मतलब what happen? It will get reduced. Okay. Similarly, अगर हमारा lower E0 value रहेगा, half reaction will not go in the forward direction, but half reaction will go in the reverse direction and it will get oxidized. Correct? मतलब अगर E0 value higher रहेगा, then substance will undergo reduction and it will get reduced. और अगर E0 value lower रहेगा, substance will go the half reaction go in the reverse direction and substance will get oxidized. And then last part we have seen the applications of electrochemical series. Application. What is the first application? By using electrochemical series, we can compare the relative strength of oxidizing agent. We can compare the relative strength of oxidizing agent. Means what is that? अगर हमारा E0 value larger रहेगा, E0 value larger का मतलब हो रहा है greater is the tendency to undergo reduction. Greater the tendency to undergo reduction मतलब that species is going to be what? Strong oxidizing agent. ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारा E0 value higher रहेगा, the substance will definitely undergo which reaction? Reduction, and that species or substance can be called as a reducing oxidizing agent. Okay, and we have said that as we go down the series, E0 value goes on decreasing, therefore tendency of the substance to undergo reduction goes on decreasing, and therefore the strength of the oxidizing agent goes on decreasing. Okay, then last point we have seen relative strength of the reducing agent. Larger the negative E0 value, मतलब अगर हमारा E0 value negative रहेगा for the half reaction, then that half reaction has a little or no tendency to occur in the forward, but it will occur in the which direction? Reverse. Okay. और अगर हमारा reaction reverse होगा, that means substance will undergo which reaction? Oxidation. और जिसका oxidation होगा वो कौन सा agent रहेगा? Reducing agent. And also we have seen कि as we go down the series, negative E0 value goes on increasing, the tendency to undergo oxidation goes on increasing, and therefore strength of the
अच्छा मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक मिनट, यहाँ पे हमारा रिडक्शन रिड्यूसिंग चाहिए था स्टूडेंट, यहाँ पे करेक्शन करना है मुझे, स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट टाइम अगर किसी ने नोट्स में लिखा होगा तो प्लीज करेक्शन करो। स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिड्यूसिंग एजेंट। एक मिनट, सिमिलर तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या पूछना पड़ेगा, लिथियम इज अ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी करेक्शन करना पड़ेगा, लिथियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? बिकॉज लिथियम हैज अ मोर नेगेटिव E0 वैल्यू, so it has a more tendency to undergo oxidation and therefore it is a strong reducing agent. Yes, यहाँ पे हमने करेक्ट किया। तो यहाँ पे प्लीज those who are written in the notes please make this correction, यहाँ पे reducing agent है, word reducing agent आना चाहिए। okay, okay, now today I will just do the question. First I will do the question which are based on the oxidizing agent and reducing agent, okay, and then I will go for the next part. So first I will do the question here, that is page number 117, question 1, 6. Page number 117, question 1, 6. They have given there, consider the half reaction. They have given the half reaction. The first half reaction is Ag plus 1 electron gives you Ag, and E0 is 0.8 volt. Second half reaction is iodine plus 2 electron gives you 2I minus, and E0 value is 0.53 volt. Third, Fe2 plus 2 electron gives you Fe in the solid state. E0 is minus 0.44 volt. Okay, देखो ये 4 reactions है, and they have asked us the question कि इसमें से which is the strongest oxidizing agent, and also we have to find out strongest reducing agent। दोनों में से हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे देखो यहाँ पे फोर्थ रिएक्शन में नहीं लिखा, यहाँ पे एक रिएक्शन रह गया, Pb2 plus 2 electron gives you Pb, and E0 equal to minus 0.13 volts. Now see, all 4 reactions are given. Now out of all these things, which has a higher E0 value? Out of all the 4 question or 4 half reaction, which has a half more E0 value? सबसे ज्यादा हायर E0 value किस हाफ रिएक्शन के लिए है? सिल्वर। ओके, सो E0 for silver is higher. E0 for silver is higher. See, E0 for silver is higher means what? Silver has a more tendency to undergo which reaction? Reduction. Reduction reaction. और जिसका reduction reaction easily होगा वो हमारा क्या रहेगा? Strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारा क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब सिल्वर, मतलब ये Ag+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो Ag+ इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी व्हाट हमने कैसे डिसाइड कर दिया कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शन E0 वैल्यू ऑफ द Ag+, मतलब इस रिएक्शन का Ag+ वैल्यू हायर है। जिसका E0 वैल्यू हायर रहेगा
that substance will always have a tendency to undergo which reaction? Reduction. और जिसका reduction reaction easily होगा वो क्या रहेगा? Strong oxidizing agent. तो Ag plus का reduction reaction easily होगा, so Ag plus is a strong oxidizing agent. Now we have to see who has the lower E0 value. सबसे ज्यादा lower E0 value किसका है? सबसे ज्यादा lower E0 value किसका है? ये है -0.13 जो ग्रेटर है, और -0.44 इज लोअर. देखो ये पॉजिटिव है, तो 0.8 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 0.53. 0.53 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 0.53 के बाद कौन सा नंबर आएगा? -0.13. -0.13 के बाद नंबर कौन सा आएगा? -0.44. ये लोअर है, तो E0 ऑफ Fe is lower, and because E0 of Fe is lower, Fe will not go, this Fe2 plus reaction will not go in the forward direction. ये reaction हमारा forward direction में नहीं होगा, जबकि क्या होगा? In the reverse direction. So because E0 of Fe is lower, lower मतलब more negative, because the E0 value of the Fe is lower, lower means what? More negative. It has a tendency to undergo which reaction? Oxidation. It will undergo oxidation. और जिसका oxidation होगा मतलब यहाँ पे Fe2 plus 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, जिससे अच्छा क्या होगा? Fe2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म करेगा? Fe2 plus. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन अगर होगा तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट. और ये जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा वो कैसे रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा. तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर मुझे लिखना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में कौन आएगा? Fe आएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन होगा तो ये आएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये हमारा आंसर है, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. The strongest oxidizing agent is Ag plus and strongest reducing agent is F. आपको आंसर समझ में आ रहा है क्या? यस सर. ओके, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पे किसका E0 वैल्यू हायर है. जिसका E0 वैल्यू हायर, हायर मतलब क्या? हायर का मतलब मोर पॉजिटिव रहेगा. That substance will undergo which reaction? Reduction more easily. ऐसा नहीं कि बाकी का रिडक्शन नहीं होगा, इनका सबका रिडक्शन हो सकता है, बट इसका रिडक्शन इजीली होगा, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा. और जिसका E0 वैल्यू सबसे लोअर है मतलब मोर नेगेटिव है, वो नॉर्मली क्या प्रीफर करेगा? ऑक्सीडेशन प्रीफर करेगा. तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो देखो Fe का ऑक्सीडेशन होगा मतलब रिवर्स रिएक्शन होगा, तो Fe विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ. दूसरा क्वेश्चन जो यही कंसेप्ट के ऊपर बेस से, पेज नंबर मतलब द प्रॉब्लम इज ऑन पेज नंबर 119, लेकिन कहां से आ रहा है? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 से 12. क्वेश्चन नंबर 4 का 12th है जो पेज नंबर 119 पे. व्हाट इज द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फॉर हियर? Identify oxidizing agent, identify oxidizing agent and arrange them in order of increasing strength. Arrange them in the order of their increasing strength. तो सबसे पहले उन्होंने अलग अलग एग्जांपल दिए. देखो वो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उसका रिएक्शन कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उसका हाफ रिएक्शन कौन सा होगा? यस, हमें क्या फाइंड आउट करना है? यस, हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड क्या करना है? हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करना है.
हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करना है मतलब उसका रिएक्शन कौन सा होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन। और रिएक्शन अगर रिडक्शन होगा तो इसका मतलब उनका जो E0 वैल्यू होगा वो कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। E0 वैल्यू कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि जिनका E0 वैल्यू पॉजिटिव रहेगा दे विल अंडरगो रिडक्शन एंड दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी हमें देखना है, देखो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो आई एम शेयरिंग द सम विथ यू। इसके अंदर उन्हें क्या बोला है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and arrange them in the order of their increasing strength under standard state condition। तो अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है मतलब उसका रिएक्शन कौन सा होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन होना चाहिए मतलब E0 वैल्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे E0 वैल्यू पॉजिटिव किसका है, क्लोरीन का E0 वैल्यू पॉजिटिव है, ओके। और आयोडीन का E0 वैल्यू पॉजिटिव है एंड ब्रोमीन का E0 वैल्यू पॉजिटिव है। तो इनका E0 वैल्यू पॉजिटिव है मतलब, so I'll just write down here the first one is a chlorine whose E0 value is 1.36 volt. Second one is iodine whose E0 value is 0.54 volt. And third is Br minus whose E0 value is 1.09 volt. इनके E0 values positive है, इनके E0 values positive है मतलब they all will undergo which reaction, reduction। So they all are, these all are ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे। अभी इसके इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा, बिकॉज वी हैव टू अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा, तो जिसका रिडक्शन रिएक्शन इजीली होगा। तो तीनों में से सबसे फास्ट रिडक्शन रिएक्शन किसका होगा, तीनों में से सबसे फास्ट रिडक्शन रिएक्शन किसका होगा, क्लोरीन का। यस करेक्ट, क्योंकि क्लोरीन हैज अ हायर E0 वैल्यू, क्लोरीन हैज अ हायर E0 वैल्यू। तो क्लोरीन का E0 वैल्यू हायर है तो क्लोरीन का रिडक्शन इजीली होगा। तो क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्लोरीन। लोअर देन क्लोरीन आएगा ब्रोमीन Br माइनस एंड लोअर देन ब्रोमीन आ जाएगा I2 मतलब आयोडीन। सो दिस इज द ऑर्डर। Strong oxidizing agent is chlorine, then we are having bromine, and then we are having here iodine. Okay, तो ये हमारा ऑर्डर है फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। In the order is in the increasing order of oxidizing agent। ओके, अभी इससे रिलेटेड दूसरा एक एग्जांपल है। सेम पेज नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 4 का ही 13 नंबर। यहाँ पे क्या बोला है, आइडेंटिफाई the reducing agent। हमें आइडेंटिफाई करना है, रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है एंड अरेंज देम in increase in order of their strength। 1 minute student, 1 minute।
ओके, सो यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखो हमें सबसे पहले करना है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके बाद उन्हें अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। अगेन देखो, सबसे पहले हमें रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उनका रिएक्शन कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उनका रिएक्शन कौन सा होगा, उनका रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन। अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट देखना है तो उनका रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के लिए हमारा जो E0 वैल्यू है वो E0 वैल्यू कैसा होना चाहिए, लोअर। लोअर का मतलब क्या होना चाहिए, मोर निगेटिव। E0 वैल्यू होना चाहिए लोअर, लोअर का मतलब क्या होना चाहिए, मोर निगेटिव। ये रिक्वायरमेंट है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले उनका रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के लिए E0 वैल्यू कैसा होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। लोअर मतलब कैसा होना चाहिए, मोर निगेटिव होना चाहिए, मोर निगेटिव होना चाहिए। ओके, तो हियर इन दिस अगर मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल शेयर करूंगा, यहाँ पे देखो एग्जांपल में, इस एग्जांपल में देखो आप, E0 निगेटिव इसका है पोटेशियम। एक मिनट, यहाँ पे थोड़े करेक्शंस है, मतलब प्रीवियस सम में करेक्शंस है। यहाँ पे उन्होंने Br माइनस लिखा है, एक्चुअली Br माइनस नहीं चाहिए, यहाँ पे Br2 चाहिए। तो मैं थोड़ा करेक्शंस कर लेता हूँ पहले वहां पे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा Br2, ये माइनस नहीं है, Br2 है। तो Br2 मतलब यहाँ पे भी आएगा Br2, तो ये माइनस नहीं है। ओके, तो ये हमारा करेक्शन। उन्होंने वहां पे Br माइनस लिखा था, Br माइनस इज नॉट देयर। क्या लिखना है, क्या हम कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे आएगा Br2, तो यहाँ पे भी आएगा Br2। ओके, ये करेक्शन है। करेक्ट आंसर माइनस दिख रहा है क्या आपको, एक मिनट, Br2। ओके, तो ये ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखो, हमें निगेटिव वैल्यू किसका किसका दिखाई दे रहा है, निगेटिव वैल्यू किसका किसका दिख रहा है, पोटेशियम का। पोटेशियम के बाद निगेटिव वैल्यू किसका दिख रहा है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बाद किसका दिख रहा है, टाइटेनियम का। और टाइटेनियम के बाद किसका दिख रहा है, निकेल का। तो मैं इनके सबके वैल्यूज पहले लिख देता हूँ। आई जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज, निगेटिव वैल्यूज। सो E0 of potassium is one minute, directly I'll write down, or I can say potassium E0 value is how much, minus 2.93 volt. Then magnesium is minus 2.36 volt. Titanium 2 plus is minus 0.37 volt. And nickel is minus 0.23 volt. Okay, देखो पोटेशियम का है minus 2.93, मैग्नीशियम का है minus 2.36, टाइटेनियम का है minus 0.37, और निकेल का आ रहा है minus 0.23। तो इनका सबका वैल्यू निगेटिव है, and because they are having the negative value, they all will undergo which reaction, oxidation. So they all will act as a reducing agent. तो ये हमारे सारे reducing agent है. So they all are reducing agent. अभी हमको उनका strength देखना है. Arrange them in the increasing order of their strength. Arrange them in increase in order of their strength. Arrange them in the increasing order of their strength. Strength के increasing order में arrange करो. तो सबसे पहले देखो, जिसका E0 वैल्यू सबसे लोअर मतलब ज्यादा मोर निगेटिव रहेगा, वो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। जिसका E0 वैल्यू सबसे लोअर, लोअर मतलब मोर निगेटिव, तो यहाँ पे minus 2.93 इज मोर निगेटिव। उसके बाद तो सबसे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन आएगा, हमारा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम।
-2.93 इज द लोएस्ट, उसके बाद -2.36, उसके बाद क्या आएगा -0.37, मतलब कौन आएगा टाइटेनियम 2+, और उसके बाद कौन आएगा Na, उसके बाद आएगा Na। ये हमारा स्ट्रेंथ है। सो दिस इज द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम इज अ, ये हमारा रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये हमारे दो एप्लीकेशंस के ऊपर के दो क्वेश्चंस थे। देखो हमारा ईएमएफ सीरीज का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था कि ईएमएफ सीरीज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ईएमएफ सीरीज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट, ये हमारा हुआ है। नाउ अभी ईएमएफ सीरीज का थर्ड एप्लीकेशन, सो आई जस्ट गो फॉर थर्ड एप्लीकेशन। Yes, the third application is, third application, this is application of electro or electrochemical series. Third one, already two we have done. What is third application? To find out spontaneity of redox reaction. ओके, मतलब अगर हमें रिडॉक्स रिएक्शन दिया रहेगा तो रिडॉक्स रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी फाइंड आउट करो, मतलब हमें जो रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं वो फाइंड आउट करो। तो कैसे मालूम है? इफ, सबसे पहले इफ 2 E0 values are provided, मतलब अगर हमें 2 E0 वैल्यूज प्रोवाइड किए रहेंगे, इफ 2 E0 वैल्यूज आर प्रोवाइडेड then electrode with higher E0 value act as a cathode and undergo reduction। देखो अगर हमारे पास 2 E0 वैल्यूज रहेंगे then electrode with higher E0 value will act as a cathode and will undergo reduction. The other electrode with lower E0 value act as anode and undergo oxidation। मतलब जिस इलेक्ट्रोड का लोअर E0 वैल्यू रहेगा, जिस इलेक्ट्रोड का लोअर E0 वैल्यू रहेगा will undergo oxidation, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा and it will act as a anode। in that case, अगर हमारा सिचुएशन ऐसा अगर रहा in that case, और I can say in this case, मतलब ऐसे केस में क्या होगा? E0 सेल is पॉजिटिव, मतलब मुझे जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, करेक्ट। एंड देयरफॉर सेल रिएक्शन which is called as a redox reaction is positive। okay, redox reaction is
स्पॉन्टेनियस। आई रिपीट अगेन कि अगर मेरे पास दो E0 वैल्यूज रहेंगे, अगर मेरे पास दो E0 वैल्यू रहेंगे, तो जो E0 वैल्यू हायर रहेगा वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा कैथोड और उसका होगा रिडक्शन। एट द सेम टाइम जिस इलेक्ट्रोड का E0 वैल्यू लोअर रहेगा विल एक्ट एज अ एनोड एंड विल अंडरगो विच रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होगा। एंड फिर इनका क्या होगा इन दैट केस, इन दिस केस फिर क्या होगा, अगर ऐसा हमारा सिचुएशन रहा तो इन दिस केस हमारा जो E0 सेल का जो आंसर है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर हमारा E0 सेल का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शंस है वो कैसे रहेगा, या हमारा जो सेल रिएक्शन है वो कैसा बनेगा, स्पॉन्टेनियस बनेगा। कैसे बनेगा, स्पॉन्टेनियस बनेगा। ये हमारा मेन कंडीशन। दैट मीन्स वी कैन से हियर therefore we can say the standard cell potential means E0 cell must be, standard cell potential must be positive for reaction to be spontaneous। मतलब इन जनरल अगर हमें कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस बोलना है तो उसका E0 सेल का आंसर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अगर हमारा E0 सेल का आंसर अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब हमारा सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ओके, नाउ दे हैव गिवन जस्ट वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। ये हमारे 3 एप्लीकेशंस हो गए। तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस क्या थे, पहला वाला एप्लीकेशन था to identify the relative strength of the oxidizing agent. Second application tha to identify the relative strength of the reducing agent. Third application tha to decide the spontaneity of the redox reaction. Correct? ये 3 applications हुए। अब ये third applications के हम लोग example करेंगे। Example, what is the first example that here they ask, can Ag plus ions oxidize metallic magnesium? उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया हियर, कैन Ag प्लस आयन, मतलब हमारे पास अगर Ag प्लस आयन रहेंगे तो कैन Ag प्लस आयन ऑक्सीडाइज मेटालिक मैग्नीशियम, मतलब Ag प्लस आयन मेटालिक मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने क्वेश्चन दिया तो पहले हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। Ag प्लस आयन मेटालिक मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहे, तो Ag प्लस आयन मेटालिक मैग्नीशियम को मतलब Mg को क्या करे, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, मतलब Mg क्या बनेगा, Mg2+ बनेगा। ठीक, उन्होंने खाली सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस से हमें इक्वेशन बनाने के लिए आना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है कि Ag प्लस आयन मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या, तो पहले इक्वेशन लिखा, Ag प्लस मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब क्या करेगा, Mg2+। तो अगर Mg का ऑक्सीडेशन हो गया तो Ag प्लस का रिडक्शन होकर Ag प्लस क्या फॉर्म करेगा, Ag। तो ये हमारा सेल रिएक्शन, ये हमारा सेल रिएक्शन है, या तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी हमें देखना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, ये रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे, देखो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है। Mg gives you Mg2+, तो Mg gives you Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा ऑक्सीडेशन है, मतलब इट विल ऑकर एट एनोड। और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, ये हमारा रिडक्शन है एंड विल एक्ट एज द कैथोड। Mg is turning toward Mg2+, charge of the Mg is increasing, so it is which reaction, oxidation. Ag plus is becoming Ag, the charge of the silver is decreasing, so reduction.
ओके, तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारा Mg जो है वो एनोड है और हमारा सिल्वर जो है वो कैथोड है, करेक्ट। तो आई जस्ट कैलकुलेट द E0 सेल. E0 cell is equal to E0 of cathode minus E0 of anode. E0 of cathode minus E0 of anode. तो कैथोड कौन है हमारा यहाँ पे? सिल्वर. एनोड कौन है हमारा यहाँ पे? Mg. और हमारा जो टेबल है, टेबल में हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है. सिल्वर का वैल्यू है 0.8, मैग्नीशियम का वैल्यू है -2.37. तो अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा? 0.8 प्लस 2.37. अगर मैं ऐड करूंगा तो आई विल गेट द आंसर हियर एज व्हाट? 3.17. आंसर पॉजिटिव आ रहा है. आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब Ag प्लस, जो हमारा क्वेश्चन मार्क था, कैन Ag प्लस ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम, तो ये अगर हमारा E0 सेल का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा रिएक्शन कैसे रहेगा? स्पॉन्टेनियस रहेगा. आई कैन जस्ट राइट डाउन द सेंटेंस हियर. Since E0 cell is positive, since E0 cell is positive, cell reaction is spontaneous. Since E0 cell is positive, cell reaction is spontaneous. Correct? तो हमारे एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन इस टाइप के देखेंगे. ओके, सो गो टू पेज नंबर 119. सेम क्वेश्चन नंबर 4 का 14. क्वेश्चन नंबर 119, सॉरी, पेज नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 4 का 14. उन्होंने हेडिंग दिया है वो है प्रेडिक्ट whether the following reactions would occur spontaneously under standard state condition. मतलब हमें अभी यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है कि हमें जो रिएक्शंस दिया हुआ है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हुआ होगा कि नहीं होगा अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन. What is the equation they have given here? The first equation, calcium combined with cadmium 2 plus gives you calcium 2 plus. तो ये हमारा सेल रिएक्शन, या either you can call as a cell reaction or you can call it as a redox reaction. तो आप सेल रिएक्शन भी बोल सकते हो, इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो, जो चाहे वो बोल सकते हो. आप दो तरह से रीड कर सकते हो. कैल्शियम कैडमियम का रिडक्शन कर रहा है, कैल्शियम कैडमियम का रिडक्शन कर रहा है क्योंकि कैडमियम 2 प्लस से सी डी बन रहा है. या आप ऐसे भी बोल सकते हो कैडमियम 2 प्लस कैल्शियम का ऑक्सीडेशन कर रहा है. ये हमें चेक करना है. मतलब अगर कैल्शियम के टर्म्स में बोलोगे तो कैल्शियम इज डूइंग रिडक्शन ऑफ कैडमियम, Cd2 प्लस CD बना रहा है. और अगर कैडमियम के टर्म्स में अगर क्वेश्चन बनाओगे तो कैडमियम 2 प्लस कैल्शियम का ऑक्सीडेशन कर रहा है. ओके, ये क्वेश्चन है, लेकिन हमें देखना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं. तो सबसे पहले देखो इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो Ca इज गिविंग Ca2 प्लस, तो यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारा
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ये हमारा एनोड है, ओके। और CD2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये CD, बिकॉज यहाँ पे CD2 प्लस है और यहाँ पे CD है, तो CD2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन CD, तो ये हमारा ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन, ये हमारा एनोड है, ये हमारा सॉरी ये हमारा कैथोड है, ओके। तो ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। बस ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐड करोगे तो आपको यही रिएक्शन वापस मिल जाएगा। हमें खाली क्या देखना था कि इसमें से कैथोड कौन सा है और इसमें से एनोड कौन सा है, तो ये पता चला। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैल्शियम इज अ एनोड, कैडमियम का रिडक्शन हो रहा है तो कैडमियम इज अ कैथोड। फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे E0 सेल। E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। कैथोड कौन है? कैडमियम। एनोड कौन है? कैल्शियम। इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, मतलब हमारी जो हमारा सीरीज है उससे हमें पता है कि हमारा कैडमियम जो है, तो ये वैल्यू आपको कहां से पता चले? सीरीज से पता चलेंगे। सीरीज से हमारे कैडमियम का पोटेंशियल कितना है, देखो एक मिनट में बताता हूँ आपको, मतलब आपके पास अगर टेक्स्ट बुक रहेगा तो पता चलेगा। कैडमियम, ये हमारा कैडमियम -0.403 और कैल्शियम -2.866, ये वैल्यूज है, करेक्ट। वैल्यूज राइट डाउन हियर। कैडमियम वैल्यू इज -0.403 माइनस, और कैल्शियम वैल्यू इज -2.866. So this will become what? -0.403 plus 2.866. अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, देखो 2.866 minus 0.403 362. So plus 2.263. So since I can say here, since E0 cell is positive, हमारा E0 cell positive है, therefore above reaction is possible, हमारा ऊपर वाला रिएक्शन पॉसिबल है। तो पॉसिबल मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, कैल्शियम कैन reduce कैडमियम 2 प्लस, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कैडमियम 2 प्लस कैन ऑक्सीडाइज कैल्शियम। दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बिकॉज हमारा E0 सेल पॉजिटिव आ रहा है, और E0 सेल पॉजिटिव मतलब वो रिएक्शन इज पॉसिबल। पॉसिबल मतलब इट इज स्पॉन्टेनियस, करेक्ट, इट इज स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब कैल्शियम कैन रिड्यूस कैडमियम, यस, और cadmium 2 plus can oxidize calcium. Both the way it is correct. Okay. Yes. Now I'll go for the next term of this type. Next one, we have done with the A part. Now I'll just go for the B part of it. B part. 2Br minus in the solid state, SN2 plus in the aqueous state gives you Br2 in the liquid state plus SN in the solid state. ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं बोल दो। तो अगेन हियर
सबसे पहले आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो Sn2+ का हो रहा है Sn2+ का हो रहा है Sn, मतलब Sn2+ इज अंडरगोइंग रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है 2Br माइनस गिविंग Br2, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है माइनस और यहाँ पे चार्ज है 0, -2 0 मतलब चार्ज ऑफ द एलिमेंट इज इंक्रीजिंग, और अगर एलिमेंट का चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन कौन सा आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा। -1 to 0 मतलब इंक्रीजिंग, एंड देन हियर विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करो इक्वेशन को, 2Br, लेफ्ट साइड में -2 चार्ज है, राइट साइड में भी -2 चार्ज है। ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रहेगा हमारा एनोड। और दूसरा Sn2+ will accept 2 electron to gives you what, Sn। ये हमारा रिडक्शन, हमारा कैथोड। देखो Sn यहाँ पे चार्ज 0 है तो +2 एंड -2 0, तो हमें एनोड और कैथोड पता चला। हम लोग फाइंड आउट करते E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। हमारा कैथोड जो है वो ब्रोमीन है, ब्रोमीन, और हमारा एनोड जो है वो Sn। अपने सीरीज के, अपने टेबल से दोनों के वैल्यूज पता चलेंगे। ब्रोमीन का वैल्यू हमारे पास है, ब्रोमीन का वैल्यू हमारे पास है, यस आई मिस द क्वेश्चन, क्या काय क्वेश्चन होता सर ते व्हॅल्यूज लर्न करावं लागतात का? नाही एक्झामला व्हॅल्यूज देणार। ओके सर. Okay, so here they have given the value bromine is 1.080 minus anode is Sn, and Sn is minus 0.136. So here 1.080 plus 0.136. 1 minute of bromine is 1 minute. Bromine is how much? 1.080 and Sn is minus 0.136 minus दोन्ही वाले बरोबर आहेत का ते? 1.080 plus 0.136 6 2.216. So I can say here, since E0 cell is positive, above given reaction is what, spontaneous। और यहाँ का लास्ट पार्ट सी है, (2Ag plus Ni2 plus gives you 2Ag plus 1 point answer. Okay, sorry, 1 point. Yes, 1.216. Yes. See, they have given 2Ag in the solid state plus Ni2 plus in the aqueous state, and 2Ag plus in aqueous state, and plus Ni in the solid state. This is the reaction. Now see here, Ag here is 0 and Ag here is +1. So Ag is becoming Ag +1 electron. So Ag is undergoing which reaction? Oxidation. Ag, and here is Ag +1. The charge of the silver is increasing.
So silver is undergoing which reaction? Oxidation. Correct. So silver will act as a anode. Ni2 plus will gain 2 electron. 2 gives you Ni. Now you can see here is Ni2 plus. Charge of the Ni is decreasing. So it is which reaction? Reduction. And Ni will act as a cathode. Ni will act as a cathode. Okay, and then here यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज के, इसलिए यहाँ पे उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो देखो अगर 2Ag प्लस, लेकिन मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हमें खाली क्या देखना है, इस रिएक्शन से हमें आइडेंटिफाई करना है एनोड एंड कैथोड. तो हमारा सिल्वर एनोड रहेगा और हमारा निकेल कैथोड रहेगा. तो वंस वी गेट, वी कैन जस्ट राइट डाउन E0 cell equal to E0 of cathode minus E0 of एनोड. हमारा कैथोड है Ni और एनोड है सिल्वर. Ni का वैल्यू, आई जस्ट रिफर द टेबल. In the table, the value of the Ni is minus 0.257 and silver is 0.799 plus. So here minus 0.257 and minus 0.799. So you can add here minus 0.257 and minus 0. Both are minus. So it will be 9 plus 7, 16. 10 plus 5, 15. Minus. So you get answer minus 1.056 volt. So I can say here since E0 cell is negative above, since E0 cell is negative, above given reaction is non-spontaneous. Above given reaction is what? Non-spontaneous. ये reaction हमारा non-spontaneous है, correct? तो ये हमारा electrochemical series का third applications का. Okay, so with this we have completed this chapter. Okay, अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो बोल दो, लेकिन खाली एक कल के पार्ट का आपको करेक्शन समझ में आ गया. कल के पार्ट में थोड़ा मेरे साइड से मिस्टेक क्या हुआ था कि आई जस्ट रिपीट अगेन, जिस सब्सटेंस का larger negative, then they have little or no tendency to occur in the forward. इसका मतलब they will occur in the which direction? Reverse. और रिवर्स डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कौन सा एजेंट रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा. तो हियर tendency to undergo oxidation, so increases the tendency to undergo oxidation, strength of the reducing agent goes on increasing from top to bottom. Okay, तो ये हमारा क्वेश्चन था कल का. क्या आज के इसके ऊपर कोई डाउट है आपको या कुछ पूछना है? यस, अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया. ठीक है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आपको? ऑलमोस्ट ऑल द न्यूमेरिकल्स आई हैव डन. अभी आज के टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल्स सीरीज के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है, मैं वो न्यूमेरिकल आपको कल भेज देता हूँ. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है, आई विल फॉरवर्ड यू टुमारो.